عالمی امن اور سفارتکاری کی نئی تاریخ رقم، اسلام آباد سے چلنے والی امن کی ہواؤں سے واشنگٹن اور تہران معطل، دنیا بھر کی نظریں اسلام آباد امن مذاکرات پر، امریکہ اور ایران کے درمیان اعلیٰ سطح مذاکرات، امریکی وفد کی قیادت نائب صدر جیڈ وینس اور ایرانی وفد کی قیادت اسپیکر محمد باقر کالیباف کر رہے ہیں۔ مذاکرات میں نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف اور مشیر وائٹ ہاؤس جیرڈ کشنر اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی بھی شریک۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی ملاقات، نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر بھی ہمراہ، نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ملاقات میں موجود۔ وزیر اعظم کی دونوں وفود کے تعمیری انداز میں مذاکرات کے عزم کی تعریف، وزیر اعظم کا خطے میں دیر پا امن کے لیے فریقین کے درمیان سہولت کاری جاری رکھنے کا عزم، امید ہے کہ یہ مذاکرات خطے میں پائیدار امن کی جانب سنگ میل ثابت ہوں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف کی ملاقات، وزیر خارجہ عباس اراغچی بھی ہمراہ۔ پاکستان خطے اور دنیا میں امن و استحکام کے لیے مثبت اور مؤثر کردار ادا کرتا رہے گا۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد مذاکرات میں ایران کی شرکت کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ملاقات میں موجود۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار سے ایران کے مرکزی بینک کے گورنر ڈاکٹر عبد النصر ہمتی کی اسلام آباد مذاکرات کے موقع پر ملاقات، دونوں رہنماؤں کا مسلسل اور بامقصد مذاکرات کی اہمیت پر زور، خطے میں امن و استحکام، اقتصادی تعاون اور مشترکہ ترقی کے لیے ناگزیر قرار دیا۔ پوری دنیا سے، چائنا سے، جاپان سے، جرمنی سے، سعودی عربیہ سے، کوریا سے کچھ جرنلسٹ آئے ہیں۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ یہاں جناح کنونشن سینٹر میں وزارت اطلاعات و نشریات نے تمام فیسلٹیز انڈر ون روف دی ہیں۔ ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی ہے، سکرینز نصب کی گئی ہیں، کمپیوٹرز، پرنٹرز، تمام تر جو بھی صحافتی جو امور ہوتے ہیں ان کو سر انجام دینے کے لیے ضروری اکوپمنٹ ہے وہ سارا نصب کر دیا گیا ہے۔ کوشش کی ہے کہ ایک ہی جگہ پہ سب ہوں تاکہ باہر ان کو دقت نہ ہو اپنے فرائض سر انجام دینے میں۔ ایران امریکہ تاریخی مذاکرات، جناح کنونشن سینٹر میں جدید میڈیا سینٹر قائم، وزارت اطلاعات و نشریات کی جانب سے ملکی اور غیر ملکی صحافیوں کے لیے بہترین انتظامات، میڈیا نمائندگان کی سہولت کے لیے مکمل کوارڈینیشن، مذاکرات کی بروقت اور مؤثر کوریج کی عالمی سطح پر ممکن بنانے کے لیے اقدامات کیے ہیں، صحافیوں کو ایک ہی چھت تلے تمام ضروری سہولیات فراہم کی گئیں، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ۔ وفاقی وزیر ہیں عطا اللہ تارڑ صاحب، ان کی رہنمائی، ان کی گائیڈنس میں پلان بنایا گیا اور اس پلان کے تحت ہمارا بیسک مقصد یہ تھا کہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے یا جو ہمارا لوکل میڈیا ہے اس کو بھرپور جو ہے وہ ہم ان کی رہنمائی کریں۔ تو اس سلسلے میں ہم نے نہ صرف یہاں پہ اس کو ایمرجنسی بیسس پہ یہاں پہ اس کو اسٹیبلش کیا اس میڈیا اینڈ فیسیلیٹیشن سینٹر کو، بلکہ ہم نے ان کو ایک پراپر شٹل سروس بھی فراہم کی تاکہ ان کو یہاں تک پہنچنے میں کسی قسم کی دشواری نہ پڑے۔ آج پاکستان کے لیے ایک اہم دن ہے، غیر ملکی صحافیوں کو مکمل تعاون فراہم کیا جا رہا ہے۔ صحافیوں کو میڈیا سینٹر بروقت پہنچانے کے لیے خصوصی شٹل سروس بھی فراہم کی گئی۔ ذرائع ابلاغ کو اس تاریخی ایونٹ کی بھرپور کوریج کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات مکمل تعاون کر رہی ہے۔ سیکریٹری اطلاعات و نشریات اشفاق احمد خلیل کی میڈیا سینٹر کے دورے کے موقع پر گفتگو۔ ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے اچھی ٹیم پاکستان بھیجی ہے، مذاکرات کے مثبت نتائج متوقع ہیں۔ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہ ہو، یہ ہمارے لیے اچھی ڈیل ہوگی، امید ہے آبرائے ہرمز کو بہت جلد کھول دیا جائے گا، امریکی صدر۔ امن مذاکرات میں شرکت کے لیے امریکہ کا اعلیٰ سطح وفد کی اسلام آباد آمد، نور خان ایئر بیس پہنچنے پر امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سمیت وفد کا پرتپاک استقبال، نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے وفد کا استقبال کیا۔
ایران کے اعلیٰ سطح مذاکراتی وفد کی اسلام آباد آمد، پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالباف کی قیادت میں وفد کا اسلام آباد پہنچنے پر والہانہ استقبال، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی ہمراہ، نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ سید محسن نقوی نے استقبال کیا۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ اسلام آباد مذاکرات سے پر امید، اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات سے اچھی توقعات وابستہ ہیں۔ پاکستان نے امریکہ اور ایران کو سفارتی موقع فراہم کیا، پاکستان کشیدگی میں کمی اور دشمنی ختم کرنے کے لیے اچھا کردار ادا کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے ایلچی سفارتی کوششوں کی حمایت کے لیے خطے میں موجود ہے۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوترس۔ امریکہ ایران مذاکرات، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پاکستان کے لیے فخر کا لمحہ قرار دیا، دنیا میں پاکستان کے نمایاں کردار پر خوشی کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت کو خراج تحسین۔ قیادت نے پاکستان کا وقار اور تشخص بحال کیا، پاکستانیوں میں نیا اعتماد اور فخر پیدا ہوا۔ الحمدللہ پاکستان سربلند ہو رہا ہے، مریم نواز کا ایکس پر بیان۔ پاکستان نے دیرینہ روایت برقرار رکھتے ہوئے سفارتی کوششیں سر انجام دیں، بنیادی طور پر سہولت کار کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تصفیہ طلب معاملات کے حل کی ذمہ داری متعلقہ فریقین کی ہے، بات چیت اور افہام و تفہیم سے معاملات حل کرنے میں مدد ملے گی۔ سفارتکاری میں سعودی عرب، مصر، ترکی اور دیگر شراکت داروں کی حمایت و معاونت حاصل رہی۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ کی NBC کے پروگرام میٹ دا پریس سے گفتگو۔ امریکہ ایران امن مذاکرات، اسلام آباد سے پاکستان ٹیلی ویژن کی لمحہ بلمحہ رپورٹنگ، تجربہ کار نمائندوں اور شعبہ خبر کی باصلاحیت ایک بڑی ٹیم اس تاریخی ایونٹ کی بھرپور کوریج کو یقینی بنانے میں مصروف، معزز مہمانوں کی آمد سے لے کر مصروفیات تک کی بروقت اور مستند خبریں اور تجزیے صرف پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی سکرین پر۔ مذاکرات سے امن کی نئی سحر تک کے عالمی سفر میں سچائی کو عوام تک پہنچانا PTV نیوز کی اولین ترجیح۔ پاکستان نے انتھک سفارتی کوششوں سے دنیا کو غیر یقینی صورتحال سے نکالا، امن اور انسانیت کی ایک نئی امید دلائی۔ دیرینہ تنازعات کا حل بات چیت کے ذریعے ہی نکالا جا سکتا ہے۔ پاکستان کی ثالثی میں اسلام آباد میں ہونے والے ایران امریکہ مذاکرات ایک تاریخی پیش رفت قرار۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام بھی گزشتہ 78 برس سے تنازع کشمیر کے پرامن حل اور حق کے خود ارادیت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے نظربند چیئرمین مسرت عالم بٹ، بھارت نے کشمیریوں کو ایک بڑی جیل میں قید کر رکھا ہے، محبوبہ مفتی۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور ترک صدر رجب طیب ایردوان سے ٹیلی فونک رابطہ، رہنماؤں کا جنگ بندی میں لبنان کو بھی شامل کرنے پر اتفاق۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور ایران امریکہ جنگ بندی پر تبادلہ خیال، خطے کے لیے مضبوط اور دیر پا سفارتی حل ناگزیر قرار۔ Trump was actually scared whether Vance's security is going to be safe or not, whether he will be secure or not within Pakistan. He will be safe. And honestly, this is Times Now. This is one of the most esteemed stations in all of India. And you all look like a bunch of school children right now, squabbling over things that really don't make a difference. And I feel like the school teacher about to discipline each and every one of you. This is about lives. This is about livelihood. This is about expensive gasoline for everyday Indians, everyday Americans. And the way you all are squabbling and turning this into a Pakistan versus India dispute is actually quite embarrassing. جنگ بندی میں پاکستان کے فیصلہ کن کردار سے بھارت میں صف ماتم بچ گئی۔ سابق امریکی سفارتکار نے پاکستان سے حسد میں مبتلا بھارتی اینکر کو کھری سنا دی۔ امریکی نائب صدر کی سیکیورٹی پر احمقانہ سوال کرنے پر بھارتی اینکر کو سابق سفارتکار نے آڑے ہاتھوں لے لیا۔ پاکستان مخالف پروپیگنڈے کی کوشش میں مودی حکومت خود سفارتی تنہائی کا شکار ہو چکی ہے۔ ماہرین ہم وزیراعظم شہباز شریف صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کی اور عوام کو ریلیف دیا۔
یہ جو پیٹرول کی پرائس گری ہے یہ ایک بہت خوشائند اقدام ہے گورنمنٹ کی جانب سے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ باقی اشیاء کی قیمتیں جو بڑھی ہیں وہ بھی کم ہوں گی۔ پیٹرول اور ڈیزل کی نمایاں کمی کی وجہ سے ٹرانسپورٹروں کے جو کرائے ہیں ان میں نمایاں کمی آئی ہے، جس وجہ سے ہمیں لگ رہا ہے کہ حکومت عوام کی بہتری کے لیے کافی کوشش کر رہی ہے۔ وزیر اعظم کی طرف سے ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں نمایاں کمی کا اعلان خوشائن۔ مشکل معاشی حالات میں وزیر اعظم کے اعلان سے عوام پر مہنگائی کا بوجھ کم اور ہر طبقے کو براہ راست فائدہ ہوگا۔ گڈز ٹرانسپورٹر بسوں کے کرائے میں واضح کمی ہوگی، عوام کا رد عمل۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے عام انتخابات 7 جون کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ گلگت بلتستان کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری۔ الیکشن کمیشن کے متعلقہ اداروں کو انتخابی عمل کے لیے تمام انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت۔ عام انتخابات کے اعلان کے بعد سیاسی سرگرمیوں میں تیزی۔ ناسا کے آرٹیمس 2 کے خلا بازوں پر مشتمل تاریخی مشن مکمل۔ خلا بازوں نے 50 سال بعد پہلی بار چاند کے گرد چکر لگایا۔ عملے نے بحر الکاہل میں پیراشوٹ کے ذریعے ایک کامیاب لینڈنگ کی۔ آرٹیمس 2 نے گزشتہ ہفتے فلوریڈا کے کینیڈی اسپیس سینٹر سے 10 روزہ سفر کا آغاز کیا تھا۔ کٹ شاٹ کھیلا، خوبصورت شاٹ کھیلا، بیک فٹ پر گئے، ایک اور چوکا، اور اس کو اٹھا کے کھیل دیا ہے جو باؤنس تھا۔ تھوڑی دیر ہوا میں رہی اور ڈائیو ضرور کی۔ چند بالوں سے باؤنڈری حاصل کرنے کی جو کوشش ہے اس میں ایک بار کامیاب ہوا ہے بابر اعظم۔ کراچی میں پاکستان سپر لیگ پشاور زلمی کی لاہور قلندرز کے خلاف 76 رن سے کامیابی۔ زلمی 9 پوائنٹس کے ساتھ ٹاپ پوزیشن پر۔ زلمی کے 7 وکٹوں پر 173 رنز، کوسٹل مینڈس کے 74 اور بابر اعظم کے 43 رنز۔ لاہور قلندرز 17 اوورز میں 97 رنز بنا کر ہمت ہار گئی۔ مائیکل برسول اور سفیان مقیم کی 3 وکٹیں۔ اور عالمی شہرت یافتہ ٹینس لیجنڈ بیرون بورگ رواما پاکستان کا دورہ کریں گے۔ سویڈش ٹینس سٹار کی آمد ITF مینز فیوچرز ٹینس ٹورنامنٹ کے دوران ہوگی۔ 26 اپریل سے اسلام آباد میں منعقد ہونے والے ایونٹ میں دنیا بھر سے 200 سے زائد کھلاڑی شریک۔ سابق عالمی نمبر 1 11 گرینڈ سلیمز ٹائٹل جیت چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید، میں ہوں ایاز اسلم۔ میں ہوں عظما چودھری۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی، اور کھیلوں کی خبروں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بلیٹن کے آغاز میں آج کی سب سے بڑی اور اہم خبر آپ کو دیں گے۔ عالمی سیاست کے انتہائی نازک مرحلے میں ایران اور امریکہ کے درمیان تاریخی اور فیصلہ کن مذاکرات اسلام آباد میں ہو رہے ہیں، جہاں پاکستان ایک مؤثر اور فعال ثالث کے طور پر عالمی امن کی نئی امید بن کر ابھرا ہے۔ اسلام آباد امن مذاکرات میں امریکی وفد کی قیادت نائب صدر JD وینس کر رہے ہیں، جبکہ ایران کے وفد کی قیادت اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر کر رہے ہیں۔ مذاکرات میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور مشرق وسطیٰ کے لیے امریکی صدر کے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف اور مشیر جیرڈ کوشنر بھی شریک ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سمیت پاکستانی قیادت نے دونوں ملکوں کے ساتھ مسلسل رابطوں، سفارتی کوششوں اور اعتماد سازی کے ذریعے اس امن عمل کو ممکن بنایا۔ مذاکرات خطے میں پائیدار امن کی جانب ایک اہم
संग मील साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर गैर जानिबदार और मौसर किरदार अदा करते हुए दुनिया को यह पैगाम दिया है कि वो अमन, इस्तेहकाम और मकालमे का दाई है, ना कि तसादुम का। इस्लामाबाद आज सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि आलमी अमन की उम्मीद का मरकज बन चुका है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस के दरमियान अहम मुलाकात इस्लामाबाद में हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इस्लामाबाद मुज़ाकरात के मौके पर होने वाली मुलाकात में अमरीकी नायब सदर की मुआवनत नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर ने की, जबकि नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार और वज़ीर दाखिला सेनेटर सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुआवनत की। वज़ीर आज़म ने दोनों वफूद के तामीरी अंदाज में मुज़ाकरात के आज़म को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की कि ये बातचीत खित्ते में देर पा अमन के क़याम में अहम किरदार अदा करेगी। वज़ीर आज़म ने इस आज़म का इआदा किया कि पाकिस्तान खित्ते में देर पा अमन के हुसूल के लिए दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान सहूलतकारी के लिए पुरअज़्म है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शरीक ईरानी वफ़द ने स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ की सरबराही में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और दीगर हुकाम भी वफ़द में शामिल थे। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरान की शिरकत को सराहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बामानी नताइज के हुसूल के लिए पेशरफ्त में मदद देने और खित्ते और आलमी अमन व इस्तेहकाम के मफाद में अपना किरदार बतौर सालिस जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। और इस्लामाबाद आमन मुज़ाकरात में शिरकत के लिए अमरीका का आला सतह वफ़द पाकिस्तान पहुंचा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस वफ़द की क़यादत कर रहे हैं। वफ़द में अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर शामिल हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी ने वफ़द का इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी वफ़द का खैर मकदम करते हुए देरपा इलाकाई और आलमी अमन व इस्तेहकाम के हुसूल के लिए अमरीकी काविशों को सराहा। मोहम्मद इसहाक डार ने तनाज़े की देरपा और पायदार हल के लिए फ़रीक़ैन के लिए सहूलतकारी जारी रखने की ख्वाहिश का इआदा किया। और आलमी अमन और सिफारतकारी के लिए इस्लामाबाद तवज्जो का मरकज, वाशिंगटन से तेहरान तक अमन के लिए तारीखी लम्हात। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ की क़यादत में आला सतह वफ़द इस्लामाबाद पहुंच गया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची वफ़द में शामिल हैं। वफ़द का इस्तकबाल नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने किया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म ने इस उम्मीद का इज़हार किया कि अफ़रीकैन तामीरी अंदाज में बातचीत करेंगे। उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से तनाज़े के पायदार और देरपा हल तक पहुँचने के लिए अफ़रीकैन की सहूलतकारी जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार से ईरान के मरकज़ी बैंक के गवर्नर डॉक्टर अब्दुल नासिर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। दोनों फरीकों ने पायदार मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम, इक़्तिसादी ताउन और पेशरफ्त के लिए ज़रूरी है। इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान मुज़ाकरात के दौरान मुल्की और गैर मुल्की मीडिया को कवरेज की सहूलत फराहम करने के लिए वफाकी वज़ारत इत्तलात और नशरियात की जानिब से जिना कन्वेंशन सेंटर में एक आलमी मयार का जदीद मीडिया सेंटर कायम किया गया है, जिसमें सहाफ़ियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की गई हैं। तफसील बता रहे हैं ज़ीशान अली भट्टी। इस्लामाबाद टाक के मौका पर वज़ारत इत्तलात और नशरियात पाकिस्तान की जानिब से मुल्की और गैर मुल्की मीडिया के लिए जिना कन्वेंशन सेंटर में बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि मीडिया सेंटर में सहाफ़ियों को एक ही छत तले तमाम सहूलतें फराहम की हैं ताकि वो अपने सहाफ़ती अमूर ऐसे तरीके से अंजाम दे सकें। पूरी दुनिया से, चाइना से, जापान से, जर्मनी से, सऊदी अरेबिया से, कोरिया से कुछ जर्नलिस्ट आए हैं। हमने कोशिश की है कि यहाँ जिना कन्वेंशन सेंटर में वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने तमाम फैसिलिटीज़ अंडर वन रूफ दी हैं। हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी है, स्क्रीन नस्ब की गई हैं, कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, तमाम तर जो भी सहाफ़ती जो उमूर होते हैं उनको सरअंजाम देने के लिए ज़रूरी इक्विपमेंट है वो सारा नस्ब कर दिया गया है। कोशिश की है कि एक ही जगह पे सब हों ताकि बाहर उनको दिक्कत ना हो अपने फ़राइज़ सरअंजाम देने में। वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात अशफाक अहमद हलील ने कहा कि आज पाकिस्तान के लिए अहम दिन है। वज़ीर इत्तलात की रहनुमाई में गैर मुल्की सहाफ़ियों को मुकम्मल ताउन फराहम किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर हैं अताउल्लाह तारड़ साहब, उनकी रहनुमाई, उनकी गाइडेंस में प्लान बनाया गया
اور اس پلان کے تحت ہمارا بیسک مقصد یہ تھا کہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے یا جو ہمارا لوکل میڈیا ہے اس کو بھرپور جو ہے وہ ہم ان کی رہنمائی کریں. تو اس سلسلے میں ہم نے نہ صرف یہاں پہ اس کو ایمرجنسی بیسس پہ یہاں پہ اس کو اسٹیبلش کیا اس میڈیا اینڈ فیسیلیٹیشن سینٹر کو، بلکہ ہم نے ان کو ایک پراپر شٹل سروس بھی فراہم کی تاکہ ان کو یہاں تک پہنچنے میں کسی قسم کی دشواری نہ پڑے. جناح کنونشن سینٹر میں کوریج کے لیے آئے صحافیوں کی جانب سے بہترین انتظامات کرنے پر وزارت اطلاعات کے اقدام کو سراہا گیا. Thank you very much first of all for the facilitation that you had provide. It's a nice area that the journalists can work easily and follow up all the screens, which was impressive also with all the screens that you can see what's going on and how the other rivals are just covering it. They give us the instruction very clearly, so we have to go to register, and since then they provide transportation to come to this installation. میرے خیال سے منسٹری آف انفارمیشن اور براڈ کاسٹنگ کو بہت بہت مبارکباد ہونی چاہیے کہ اتنے اہم لمحے کو جو تاریخی طور پہ دنیا کے اندر انفارمیشن اور میڈیا کی ہسٹری لکھے گا اس میں انہوں نے کلیدی کردار ادا کی ہے. کوئی بد انتظامی نہیں ہے، لوگوں کا خیال رکھا گیا ہے. لیپ ٹاپس وغیرہ پرووائڈ کیے ہوئے ہیں، یہاں پہ ایکسٹینشن بورڈز ہمیں پرووائڈ کیے ہوئے ہیں. دیکھ رہے ہیں ہم سب فورن میڈیا لوکل میڈیا سب کو دیکھ رہے ہیں، سبھی بہت خوش ہیں. I think we should appreciate the efforts made by the Ministry of Information and thanks to you people. صحافیوں کو میڈیا سینٹر تک لانے کے لیے شٹل سروس بھی فراہم کی گئی اور فول پروف سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے. ذیشان علی بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات اس وقت جاری ہیں. سب کی نظریں اس وقت ان مذاکرات پر لگی ہوئی ہیں. اسلام آباد اس وقت سینٹر آف اٹینشن بنا ہوا ہے. اس وقت ہمارے نمائندے ذیشان بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. جی ذیشان، آج دن بھر کیا ہوتا رہا؟ ایک تو پورے دن میں جو مذاکرات کے حوالے سے پیش رفت رہی، جس طرح سے دونوں وفود نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے الگ الگ ملاقات کی، اس کے بعد پھر مذاکرات شروع ہو گئے. تازہ ترین کیا صورتحال ہے اسلام آباد کی اور کیا کوئی اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل، اس وقت ہم وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں موجود ہیں، جو کہ نہ صرف اس وقت وفاقی دارالحکومت ہے بلکہ دنیا اس کو عالمی امن کے مرکز کے طور پہ دیکھ رہی ہے. اور اس وقت دو بڑے ممالک جن کی وجہ سے پورا خطہ جو ہے وہ اس میں کشیدگی بڑھی تھی، وہ مذاکرات کے لیے اسلام آباد میں موجود ہیں اور تمام اقوام عالم کی نظریں جو ہیں اسلام آباد کی جانب ہیں. اس وقت اسلام آباد میں امریکی نائب صدر کی جو قیادت میں وفد ہے وہ بھی موجود ہے، جبکہ ایرانی اسپیکر ہیں ان کی قیادت میں جو وفد ہے وہ بھی اسلام آباد میں موجود ہے. اور دونوں وفود کی وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے آج علیحدہ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے ان ملاقاتوں میں امن کے قیام کے لیے اپنی کوششوں کو جاری رکھنے کے عزم کا احاطہ کیا ہے. اگر اس کا پس منظر آپ کو بتائیں تو 28 فروری کو یہ جنگ شروع ہوئی تھی، رواں برس جو ہے اس کے بعد یہ دن بدن دیکھنے میں آیا تھا کہ اس جنگ میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا. اور پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ 8 اپریل کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی، جس کی وجہ سے پورا خطہ ایک دفعہ دوبارہ خطرے میں سے دوچار ہونے جا رہا تھا اور توانائی کا شدید بحران درپیش آ رہا تھا جو پورے خطے کو. تو پاکستان نے اس ٹائم آگے بڑھ کر ایک قائدانہ کردار ادا کیا اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے، جبکہ ایرانی قیادت سے بھی وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اپیل کی تھی، درخواست کی تھی کہ اس ڈیڈ لائن کو بڑھایا جائے اور سیز فائر کیا جائے. تو اس وقت پاکستان کی یہ ثالثی کی جو کوشش تھی اس کے دونوں طرف سے مثبت جواب ملا تھا، جس کے باعث سیز فائر کیا گیا تھا 2 ہفتوں کے لیے. اور اب ایک قدم آگے بڑھا ہے پاکستان کی قیادت میں یہ مذاکرات کا عمل. اب پاکستان میں اس ٹائم دونوں ممالک کے وفود موجود ہیں اور پاکستان کی پوری کوشش ہے کہ جو 8 اپریل کو سیز فائر کا معاہدہ ہوا تھا اب وہ اگلے مرحلے میں اس کو مستقل بنیادوں پہ امن کی جانب جایا جائے اور دونوں ممالک کے درمیان جو چیزیں ہیں ان کو دور کیا جائے، مسائل کو، اور ایک ٹیبل پہ بٹھا کے دونوں ممالک کے درمیان موجود مسائل کو دور کیا جائے. بہت شکریہ ذیشان علی بھٹی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے صورتحال سے. اور اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات، امید کی جا رہی ہے کہ یہ امن مذاکرات مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے اہم سنگ میل ثابت ہوں گے. مزید جانیں گے مظہر عباس سے. جی مظہر، بتائیے گا. جی، امریکہ اور ایران کے درمیان امن مذاکرات اسلام آباد میں جاری ہیں. اسلام آباد اس کی میزبانی کر رہا ہے. دونوں ملکوں کے وفود نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کی ہے اور ملاقات کے دوران اس عزم کا اعادہ کیا گیا ہے کہ پاکستان امن کے حوالے سے اپنی سفارتی کوششیں جاری رکھے گا اور یہ امن مذاکرات مشرق وسطیٰ کے امن کے لیے سنگ میل ثابت ہوں گے. دیکھا جائے تو ایران امریکہ جنگ بندی میں پاکستان تاریخی کردار ادا کر رہا ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی غیر معمولی سفارتی حکمت عملی کے نتیجے میں دونوں ممالک مذاکرات کی میز پر آئے ہیں.
जो हकीकत में पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की जीत है। एक ऐसे नाजुक वक्त में जब ईरान अमेरिका जंग एक खतरनाक मोड़ में दाखिल हो चुकी थी, तब पाकिस्तान दुनिया में अमन का अलमबरदार बनकर सामने आया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमेरिका और ईरान के दरमियान खतरनाक हद तक बढ़ती हुई कशीदगी ख़त्म करने के लिए और जंगबंदी के लिए निहायत फैसलाकुन, मौसर और तारीख साज किरदार अदा किया। पाकिस्तानी क़यादत की इस गैर मामूली काविश को आलमी सतह पर भरपूर पजीराई हासिल हो रही है। अमेरिका ईरान कशीदगी के बायस दुनिया को तवानाई की फराहमी बुरी तरह मुतासिर हुई, जिसके बायस आलमी मईशत शदीद दबाव का शिकार हुई। एक तरफ जहां आलमी सतह पर कसाद बाजारी हुई, तो दूसरी तरफ दुनिया ग़िज़ाई किल्लत की वजह से भी परेशानी में मुब्तला हुई। ऐसे वक्त में एक ऐसी मुतवाज़िन और जामे हिकमत अमली की ज़रूरत थी जो अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर ला सके। ये किरदार पाकिस्तान ने अदा किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आगे बढ़ते हुए अमेरिका और ईरान की क़यादत से जंगबंदी और अमन मुज़ाकरात शुरू करने की दरख्वास्त की। सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान की क़यादत ने पाकिस्तान की मुखलिसाना काविशों को सराहते हुए 2 हफ्ते की जंगबंदी पर इत्तफाक किया। इस दुनिया में एक बड़ी जंग के शोले मांद हुए और अमन की उम्मीद पैदा हुई। पाकिस्तान की इस कामयाबी पर आलमी बरादरी ने सुख का सांस लिया। सऊदी अरब, तुर्किया, कतर, बहरीन, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, लेबनान, ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों से आलमी रहनुमाओं ने पाकिस्तानी क़यादत से राब्ते करके इस अजीम कामयाबी मुबारकबाद दी। उन्होंने अमन के लिए पाकिस्तान की अनथक सिफारती कोशिशों को खिराज तहसीन पेश किया और इस्लामाबाद से मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बर वक्त फ़ाल और नतीजा खेज सिफारतकारी का मुजाहरा करते हुए खित्ते को एक मुमकिन बड़े तसादम से बचाने में कलीदी किरदार अदा किया। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी और मुज़ाकराती अमल का आगाज़ पाकिस्तान की शानदार सिफारती कामयाबी है, जो खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए अहम संगे मील है। पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया में अमन के दाई के तौर पर उभरा है। इस्लामाबाद आलमी तवज्जो का मरकज बना हुआ है, जहां अमेरिका और ईरान के दरमियान तारीखी मुज़ाकरात हो रहे हैं। रिपोर्ट कर रही हैं नमरा सुहेल। The arrangements have been phenomenal. They've been up to the mark. Frankly, there's less talked about it, but the Ministry of Information has really taken care of the journalists, not just the local ones, and also the ones who have traveled as well. I mean, the facilities, everything's on point. If you want to rest, if you want to use, if you want to freshen up, if you want to monitor the TV channels, everything's here. So I think the Ministry of Information and Broadcasting does deserve, a thumbs up, a round of applause for pulling this magnificently. और अमन के जाने बढ़ता हुआ ये कदम पाकिस्तान की बड़ी सफारती कामयाबी करार दिया जा रहा है। दुनिया के 2 अहम तरीन मुमालिक मुज़ाकरात की मेज़ पर इस्लामाबाद में मौजूद हैं। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद उस्मान से। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी, इस्लामाबाद इस वक्त पूरी दुनिया को अमन और आश्ती का पैगाम दे रहा है। पाकिस्तान आलमी सतह पर एक कायदाना किरदार अदा कर रहा है और बैनुल अक़वामी हलकों में पाकिस्तान का नाम इज़्ज़त और एहतराम के साथ लिया जा रहा है। पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि वो आलमी अमन के लिए एक नागुज़ीर क़ुव्वत है। वफाकी दारुल हुकूमत में अमेरिका और ईरान के आला सतह के वफूद की मौजूदगी इस हकीकत की गवाही है कि पेचीदा मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। अमरीकी नायब सदर और ईरानी स्पीकर की क़यादत में दोनों मुल्कों की वफूद की पाकिस्तान में मौजूदगी आलमी एतमाद का मुँह बोलता सबूत है। पाकिस्तान इस वक्त सालिस का किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक काविशों से ही 2 हफ्तों की जंगबंदी मुमकिन हुई है और अब इन मुज़ाकरात का असल हदफ आर्ज़ी तातुल को देरपा अमन और पायदार इस्तेहकाम में बदलना है। तेहरान और वाशिंगटन को एक छत तले इकट्ठा करना पाकिस्तान की बड़ी स्ट्रेटेजिक कामयाबी है। जी, मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात की अहमियत का हवाल बता रहे हैं फ़हद अहमद मिसन। जी फ़हद, इन मुज़ाकरात को इस वक्त दुनिया भर में किस तरह से देखा जा रहा है? पाकिस्तान की यकीनन एक बड़ी और अहम सिफारती कामयाबी है। सारी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पर जमी हुई हैं, जहां एक अहम सफारती मोड़ तारीख का रुख बदलने को तैयार है। पाकिस्तान बावकार सालिस के तौर पर आलमी एतमाद पर पूरा उतरते हुए नई दास्तान रकम करने जा रहा है। अमेरिका और ईरान के आला सतह वफूद अमन मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद में मौजूद हैं। चंद रोज़ कबल दुनिया तबाही के दहाने पर खड़ी थी। तीसरी जंग अजीम के बादल मंडला रहे थे। एटमी तसादम का खतरा हकीकी सूरत अख्तियार कर रहा था। एक तहजीब, एक कौम की तारीख
मलियामेट होने के करीब थी। तमाम आलमी रहनुमाओं की सियासत, फरासत और दानिश, बड़े दानिशवरों, मुफक्करीन और पॉलिसी साज हुक्मा की सोच बंद गली में दाखिल हो चुकी थी। एशिया, यूरोप और मशरक़ वस्ता समेत दुनिया के दीगर ममालिक परेशान हाल थे कि दुनिया को एटमी जंग की तबाहकारियों से कैसे बचाया जाए। ऐसे में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को 2 हफ्ते की तजवीज़ जंग बंदी की तजवीज़ का पैगाम अमन दुनिया सियासत में ठंडी हवा का झोंका बनकर उभरा। दुनिया में अमन की उम्मीद की किरण जागी। देखते ही देखते पाकिस्तान जंगो जदल के खतरात में लिपटी दुनिया आलम के पुरआशोब और अफरा तफरी से लबरेज सियासत का रुख अमन इस्तेकाम की वादियों की जानिब मोड़ने में कामयाब हुआ। उस वक्त कामयाब हुआ जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की जंग बंदी की तजवीज़ तस्लीम कर ली। पाकिस्तान की बेहतरीन अमन सिफारतकारी का सूरज आलमी सियासत के उफक पर भरपूर तमाज़त से जगमगाने लगा। पाकिस्तान अपनी गैर जानिबदाराना खारजा पॉलिसी के रहनुमा असूलों के मुताबिक 2 दुश्मनों के दरमियान यानी अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात कराने में कामयाब रहा। इस्लामाबाद टॉक्स जारी हैं, इसी हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। फिल वक्त बुलेटिन में बढ़ेंगे कुछ दीगर खबरों की जानिब। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ ने स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान और वजीर ममलकत मलिक रशीद अहमद खान को टेलीफोन किया और स्पीकर से उनकी हमशीरा और मलिक रशीद अहमद खान से उनकी भांजी के इंतकाल पर दिली तासीयत का इजहार किया। मोहम्मद नवाज शरीफ ने मरहुमा के दराजात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। साबिक वज़ीर आला पंजाब और रुकन कौमी असम्बली हमजा शहबाज शरीफ ने स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान और वज़ीर ममलकत मलिक रशीद अहमद खान से मुलाकात की और ताज़ियत का इजहार करते हुए मरहुमा के इसार सवाब के लिए फातिहा खानी की। पंजाब असम्बली के स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की हमशीरा और वज़ीर ममलकत मलिक रशीद अहमद खान की भांजी के इसार सवाब के लिए कसूर में खुसूसी दुआ का भी एहतमाम किया गया, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात शरीक हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ कहती हैं कि दुनिया में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के नुमाया किरदार पर पूरी कौम खुश है। बिलाशुबा आज का दिन पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में उन्होंने वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया और कहा कि मुल्क की क़यादत ने पाकिस्तान का वक़ार और तशख़्ख़ुस बहाल किया है। मकबूजा कश्मीर से खबर आपको देंगे, जहां कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नजरबंद चेयरमैन मुसर्रत आलम भट्ट ने पाकिस्तान की सालसी में इस्लामाबाद में होने वाले ईरान अमेरिका मुज़ाकरात को एक तारीखी पेशरफ्त करार दिया है। उन्होंने कहा कि इन मुज़ाकरात ने एक मरतबा फिर ये साबित कर दिया है कि दरीना तनाज़ात का हल फौजी ताकत से नहीं बल्कि बातचीत के जरिए ही निकाला जा सकता है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मुसर्रत आलम भट्ट ने नई दिल्ली के बदनाम ज़माना जेल से एक खुसूसी पैगाम में जंग बंदी के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत ने अपनी अनथक सफारती कोशिशों के जरिए दुनिया को एक गैर यकीनी सूरत हाल से निकाला और अमन इंसानियत की एक नई उम्मीद दिलाई। उन्होंने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम भी गुज़श्ता 78 बरस से तनाज़ा कश्मीर के पुरअमन हल और अपने पैदाइशी हक़ खुदरादियत का मुतालबा कर रहे हैं, मगर भारत उनकी आवाज़ पर कान धरने की बजाय उन्हें फौजी ताकत से दबाने की पॉलिसी पर बदस्तूर अमल पैरा है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह महबूबा मुफ्ती ने ज़िला कोलगाम में एक रैली से खिताब करते हुए अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी में सहूलतकारी पर इस्लामाबाद की तारीफ की और कहा कि मकबूजा इलाके में पाकिस्तान का नाम लेना मुश्किल है, लेकिन कहना ही पड़ेगा कि उसने एक अहम किरदार अदा किया। उन्होंने मजीद कहा कि भारत ने कश्मीरियों को एक बड़ी जेल में कैद कर रखा है, नौजवानों को जकड़ के रख दिया गया है और जब कोई बात करता है तो सीधा जेल पहुंच जाता है। रूसी वजारत ख़ारजा ने मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर एक अहम बयान जारी किया है, जिसमें खत्ते में बढ़ती हुई कशीदगी को कम करने के लिए सफारती कोशिशों और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के किरदार को कलीदी किरदार दिया गया है। रूसी वजारत ख़ारजा के जारी एलामिये के मुताबिक खलीज फारस के खिते में जारी पेचीदा सूरत हाल को हल करने के लिए एक और अहम मौका पैदा हुआ है। रूस ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान की सालसी में अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात खिते में पायदार अमन की बुनियाद बनेंगे। रूस ने वादा किया है कि वो अपने शराकतदारों के साथ मिलकर खिते में सियासी और सफारती ज़राए से इस्तेहकाम लाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। गिलगित बल्तिस्तान से खबर शामिल करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात रवां साल 7 जून बरोज़ इतवार को होंगे। इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ऐलान इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत हासिल इख्तियारात को बुरुएकार लाते हुए किया गया है। इलेक्शन की तारीख का ऐलान होने के बाद गिलगित बल्तिस्तान में सियासी सरगर्मियों में तेजी आने का इम्कान है।
पाकिस्तान सफारती मैदान के साथ साथ मजहबी सियाहत में भी झंडे गाड़ रहा है। थाईलैंड के बुद्ध राहिबों का वक्त पाकिस्तान में मौजूद बुद्ध मत के तारीखी मकामात के दौरे के बाद खुशगवार यादों के साथ लाहौर से थाईलैंड रवाना हो गया। इसी हवाले से आपको दिखाएंगे ताहिर जाफरी की ये खुसूसी रिपोर्ट। थाईलैंड और लाओस से ताल्लुक रखने वाले बुद्ध सियाहों के 15 रुकनी वफ्द ने अपने मजहबी मकामात देखने के लिए थाईलैंड में पाकिस्तानी सफारत खाने को दरखास्त दी। ये वफ्द 1 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद पहुंचा। वफ्द ने सवात, टैक्सिला, पेशावर और लाहौर में बुद्ध आसार कदीमा के मकामात का दौरा किया और अपनी मजहबी रसूमात अदा की। वफ्द ने अजीम स्टूपा का दौरा किया जो 3री सदी कबल अज़ मसीह में अशोक आजम ने तामीर करवाया था। ये यूनेस्को आलमी विरसा में भी शामिल है। थाई राहबों ने टैक्सिला में जूलियन खानका का दौरा किया जो तकरीबन 450 कबल मसीह की तामीर है और ये भी यूनेस्को आलमी विरसा करार दिया जा चुका है। वफ्द ने मर्दान के करीब तख्त भाई के मकाम का भी दौरा किया जहां गंधारा तहजीब के आसार मौजूद हैं। थाई वफ्द ने वादी सवात के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और गंधारा तहजीब के मरकजी आसार का मुशाहिदा किया। बादशाह वफ्द ने पेशावर और लाहौर म्यूजियम्स का दौरा किया जहां बुद्ध मत के महफूज नवादरात का जायजा लिया। राहबों ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गंधारा तहजीब के आसार और मुकद्दस नवादरात के तहफ़्फ़ुज़ को सराहा और इन ज़ियारात को जिंदगी के मुकद्दस तरीन लम्हात करार दिया। राहबों ने पाकिस्तान के अवाम ख़ुसूसन बुद्ध मकामात पर मुकामी आबादी के रवैये को सराहते हुए अपनी सफरी यादाश्त लिखने का भी ऐलान किया। वफ्द ने बुद्ध मत के तारीखी मकामात के मुनफरिद तजर्बे के बाद दीगर राहबों को भी पाकिस्तान आने की तरकीब देते हुए कहा कि पाकिस्तान मजहबी रवादारी की जन्नत है। मकामी शहरियों का कहना है कि सफारती मैदान में कामयाबी के साथ साथ मजहबी सियाहत की बहाली मकामी इलाके की तरक्की की जानिब मुस्बत पेशरफ्त है। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के ऐलान पर सभी खुश हैं। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के ऐलान का खैर मकदम किया है। मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी 40% कमी का ऐलान करते हुए सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से आवाम को रिलीफ मिलेगा और महंगाई में कमी आएगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो कमी का ऐलान किया गया है, पाकिस्तान भर के ट्रांसपोर्टर जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के इस फैसले का खैर मकदम करते हैं और हम किरायों में कमी का भी ऐलान करते हैं। और एक बार फिर बात करेंगे इस्लामाबाद में होने वाले अमन मुज़ाकरात के हवाले से। इस्लामाबाद में होने वाले अमन मुज़ाकरात पर पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं और इस वक्त हम आपको लम्हा बलम्हा अपडेट रखे हुए हैं। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की पूरी टीम, रिपोर्टर्स हों, एडिटर्स हों, सब के सब इस वक्त मैदान अमल में हमें नज़र आते हैं। हमारी रिपोर्टर्स की एक खुसूसी टीम इस वक्त इस इवेंट को भरपूर अंदाज में कवरेज दे रही है। जी बिल्कुल, सारी दुनिया की नज़रें इस वक्त इस्लामाबाद के जो मुज़ाकरात हैं उस पे लगी हुई हैं। इस्लामाबाद टॉक्स जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया की हेडलाइंस में है। इंतहाई अहम मामलात पे जो है वो बात हो रही है। पाकिस्तान में इस वक्त जेडी वैंस जो अमरीकी वफ़द की क़यादत कर रहे हैं वो मौजूद हैं। ईरानी हाई पावर्ड वफ़द मौजूद है जिनकी वज़ीर आज़म, दोनों वफूद की वज़ीर आज़म से मुलाकात भी हुई है और उम्मीद ज़ाहिर की गई है इन मुलाकातों में कि जो मुज़ाकरात हैं उनके जो आउटकम्स हैं वो इंतहाई मस्बत निकलेंगे। पाकिस्तान ने इसमें जो रोल अदा करना था वो एक बेहतरीन सालिस का तो किया ही है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो उसका अज़म ये है कि वो अभी भी अपना फैसिलिटेटर का जो है वो रोल जारी रखेगा ताकि ये टॉक्स जो हैं वो स्मूथली जो है आगे बढ़ सकें और इसके कोई मस्बत जो है वो नताइज आ सकें, जो कि ऑफ कोर्स डिपेंड करते हैं कि फ़रीक़ैन अपने मामलात में कितनी लचक दिखाते हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रों में है। पाकिस्तान ने ये साबित किया है कि पाकिस्तान इस वक्त नेट रीजनल स्टेबलाइजिंग फोर्स है, क्योंकि पाकिस्तान ने वो किया है जो दुनिया का कोई और मुल्क नहीं कर सका। पाकिस्तान ने साइलेंट सफारतकारी की जब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए और सीज़ फायर तक बात पहुँचाने में बहुत ही एक्टिवली इंगेज रहा कि ये जो वॉरिंग पार्टीज़ हैं किसी तरह सामने आमने सामने होने की बजाय एक दूसरे से बात कर सकें। ये एक सिफारती विक्ट्री है और सिफारती विक्ट्री का ये सबूत इस वक्त हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में देख रहे हैं। अब देखना ये है कि पाकिस्तान ने जो सहूलत कारी की है, जो सालिसी की है, पाकिस्तान की जो काविशें हैं वॉरिंग पार्टीज़ को, फरीकैन को मुज़ाकरात की टेबल पे लेके आया है कि ये कितने कामयाब होते हैं। जी
तारीखी सफारती मार्का यकीनन अमन की राहें इस्लामाबाद से ही निकलेंगी। स्मूथली अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात इस वक्त जारी हैं और पाकिस्तान सालिसी के तौर पर अपना मजबूत किरदार इस वक्त अदा कर रहा है। हमारी रिपोर्टर नमरा सोहेल हमें अपडेट करी थी। नमरा, आपका बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से बुलेटिन में बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी और आवाम की खुशी की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वाज़ेह कमी के बाद पंजाब के ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में 25% कमी कर दी है, जिससे आवाम में खुशी की लहर दौड़ गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने के वज़ीर आज़म के फैसले का खैर मकदम किया है। असका मकसूद की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से डीजल की कीमत में 135 रुपए और पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए फी लीटर कमी के बाद पंजाब के ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमती इक़दाम को सराहते हुए किरायों में 25% कमी कर दी है। जैसे डीजल महंगा हुआ था तो सवारी आना बंद हो गई थी बिल्कुल, तो अभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह खुशहाल होंगे। डीजल की वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है हमारा, और तकरीबन मेरा ख्याल है 10-12 हज़ार रुपये हमें डीजल सस्ता मिल रहा है। डीजल ज़्यादा डलवाते हैं उससे फ़ायदा तो जाहिर सी बात होता है। 135 रुपये कम हो गया, उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। शहरियों ने भी पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने के बाद ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी के इक़दाम को सराहा है और तवक्के जाहिर की है कि अब अशिया खुर्दोनूश के नर्ख भी कम हो जाएंगे। किराए में बहुत कमी हुई है और शहरियों को सुकून मिला है। पेट्रोल और डीजल की नुमाया कमी की वजह से ट्रांसपोर्टरों के जो किराए हैं उनमें नुमाया कमी आई है, जिस वजह से हमें लग रहा है कि हुकूमत आवाम की बेहतरी के लिए काफ़ी कोशिश कर रही है। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट बिलाल अकबर खान ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत जारी की हैं कि ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी के फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से भी वज़ीर आज़म के पेट्रोलियम मसनूआत में वाज़ेह कमी के ऐलान का खैर मकदम किया गया है। ईंधन की कीमतों में कमी ट्रांसपोर्ट, सनत, तिजारत और ज़राअत के लिए खुश आइंद है। पेट्रोलियम कीमतों में कमी के बाद ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी से आवाम को मज़ीद रिलीफ मिलने की उम्मीद है। असका मकसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया कमी के बाद आवाम में खुशी की लहर दौड़ गई है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे वकार अहमद की। बलूचिस्तान भर में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी के ऐलान के साथ मोटरसाइकिल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गुड्स ट्रांसपोर्ट्स के लिए सब्सिडी की फराहमी को बेहद सराहा जा रहा है। लोगों का कहना है फ्यूल प्राइसेस में कमी आम शहरी, मुलाजमत पेशा अफराद, ज़राअत, कारोबार और कम आमदनी वाले तबकात के लिए बड़ा रिलीफ है। हम बलूचिस्तान के अवाम भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जो है रातों रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वाज़ेह कमी की है। डीजल का रेट कम हुआ है तो आवाम को बहुत फायदा पहुंच रहा है, ट्रांसपोर्टर को भी फायदा पहुंच रहा है। डीजल तो सस्ता हो गई, बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट ने बहुत फायदा पहुंचाया आवाम को। 12 रुपए पेट्रोल में कमी किया है और 135 रुपए डीजल में, और ट्रांसपोर्ट में भी किराया कम करेगा। हम उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। डीजल का रेट नीचे कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह भी अच्छा हो गया कि और रेट नीचे आ जावे। वजीर आजम की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान उस वक्त सामने आया जब ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। ये इक़दाम मईशत और अवाम दोनों के लिए खुश आइंद है। बलूचिस्तान समझता है कि डीजल और पेट्रोल कीमतों में कमी से न सिर्फ सफरी अखराजात कम होंगे बल्कि अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में भी इस्तेहकाम आएगा। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। और कोयटा बलूचिस्तान के बाद आपको लिए चलेंगे आज़ाद कश्मीर की जानिब। आज़ाद कश्मीर में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का खैर मकदम करते हुए इसे माशी अशारियों की बेहतरी की अलामत करार दिया है। शहरियों के तासुरात जानेंगे मुजफ्फराबाद से हमारे नुमाइंदे अदील अहमद खान से। वफाकी हुकूमत की जानब से पेट्रोलियम मसनूआत में नुमायां कमी को आज़ाद कश्मीर के शहरियों ने भी मुसर्रत और इत्मीनान का बायस करार दिया है। हम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने पेट्रोल की कीमतों में कमी की और आवाम को रिलीफ दिया। ये जो पेट्रोल की प्राइस गिरी है ये एक बहुत खुशाइंद इक़दाम है गवर्नमेंट की जानिब से, और हम उम्मीद करते हैं कि इसके साथ साथ बाकी कीमतों अशिया की कीमतें जो बढ़ी हैं वो भी कम होंगी। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत में कमी से मुआशी इशारिये बेहतर होंगे और आम आदमी को बड़ा रिलीफ मिलेगा और अवाम नास में बेयकीनी की कैफियत का खात्मा होगा। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद। और वज़ीर आज़म की तरफ से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी को मुल्क भर में सराहा जा रहा है। मज़ीद जानते हैं हाफिज मोहम्मद अली आबिद की रिपोर्ट में। मशरिक़ वुस्ता में जंगी सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करना पड़ा था। जो ही वहाँ अमन हुआ है, हुकूमत पाकिस्तान ने
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी कर दी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का ऐलान करके अवाम को बड़ा रिलीफ दिया है, जिसे अवामी हलकों में खुशाइंद करार दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने डीजल और पेट्रोल की कीमत कम की, इससे बहुत फ़ायदा होगा। इससे महंगाई कम होगी, किराए में कमी आएगी, मैशत मजबूत होगी, महंगाई कम होगी, आम इंसान को रिलीफ मिलेगा। पेट्रोल घट गया रात दा ते किराए भी घट जाएंगे ते हुकूमत अच्छा कीता। हुकूमत की तरफ से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी यकीनन माशी सरगर्मियों में तेजी का बायस बनेगी। हाफिज मोहम्मद अली आबिद रगड़, PTV न्यूज़, फैसलाबाद। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मसूद अहमद खान कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया की तारीख में आज लीड कर रहा है और ईरान अमरीका मुज़ाकरात उनको मेज़ पर लाना एक बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी है। गवर्नर हाउस कराची में वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत वज़ीर आज़म डिजिटल यूथ हब के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना मसूद अहमद ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों को दुनिया सराह रही है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल पाकिस्तान में अरबों रुपए नौजवानों की फ़नी तरबियत पर खर्च किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा कि गवर्नर हाउस कराची में नौजवानों के लिए IT की तरबियत का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के तनाज़ुर में सारी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर जमी हुई हैं। कोहाट में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बेहतरीन सिफारतकारी की बदौलत मशरक़ वस्ता के हालात अमन की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने आलमी अमन के लिए जो किरदार अदा किया है वो तारीख में याद रखा जाएगा। और पाकिस्तान के लिए आने वाला कंटेनर जहाज कराची बंदरगाह पर लंगर अंदाज हो गया। जहाज MV सेलन NLC के ज़रिए इंतज़ाम कराची पहुंचा है और ये हालिया आबनाए हुर्मुज़ में रुकावटों के बाद पाकिस्तान आने वाला पहला जहाज कंटेनर है। जबले अली से जहाज की आमद तजारत की बहाली का इशारा है। जबले अली से आने वाले इस जहाज की आमद से बहरी तरसीली निज़ाम पर एतमाद मज़ीद मजबूत होने की तवक्को है। वेदर अपडेट में खुशामदीद। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट कहती है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। ताहम कश्मीर और मुल्हक़ा पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहा। ज़ेरी खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली बलोचिस्तान और जुनूब वस्ती पंजाब में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। सबसे ज़्यादा बारिश खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में रिकॉर्ड की गई। रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत छोर मिट्टी 40, टंडो जाम और ठट्ठा में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और दीगर खेलों की खबरों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के 19वें मैच में पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर्स को 76 रन से हरा दिया। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया गया। नेशनल बैंक स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। पेशावर ज़ल्मी ने 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 173 रन बनाए। मोहम्मद हारिस के 18 रन पर आउट होने के बाद बाबर आजम और कौसल मेंडिस के दरमियान 109 रन की शराकत कायम हुई। कौसल मेंडिस ने 4 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 74 रन की इनिंग्स खेली। बाबर आजम ने 43 रन स्कोर किए। लाहौर कलंदर्स की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी ने 3 और मुस्तफिजुर रहमान ने 2 विकेटें हासिल की।
जवाब में पेशावर ज़ल्मी की शानदार बॉलिंग के बायस लाहौर कलंदर्स की टीम 17 ओवर्स में 97 रन बनाकर हिम्मत हार गई। लाहौर कलंदर्स के सिर्फ 4 बल्लेबाज डबल फिगर तक पहुंच पाए। फखर जमान और अब्दुल्ला शफीक ने 21-21 रन बनाए। सिकंदर रजा ने 14 और दनक फुला लागे ने 20 रन स्कोर किए। पेशावर ज़ल्मी की जानिब से माइकल ब्रेसवेल और सुफियान मुकीम ने 3-3 विकेटें अपने नाम की। नाहिद राना के हिस्से में 2 विकेटें आई। In the air and taken the batting line up for a while, and does it, but has he done it enough? No, gone. It's a massive wicket. Up in the air, looking for the extra cover region, doesn't quite find the middle of. आलमी शोहरत याफ्ता टेनिस लेजेंड ब्योरन बोर्ग पाकिस्तान का दौरा करेंगे। स्वीडिश टेनिस लेजेंड ITF मेंस फ्यूचर टेनिस टूर्नामेंट के दौरान पाकिस्तान आएंगे। ये इवेंट 26 अप्रैल से 10 मई तक इस्लामाबाद में मुनक्किद होगा, जिसमें दुनिया भर से 200 से जायद खिलाड़ी शिरकत करेंगे। ब्योरन बोर्ग टेनिस की तारीख के सबसे बासर खिलाड़ियों में शुमार होते हैं। उन्होंने 1970 की दहाई और 1980 की इब्तदाई मुद्दत में टेनिस की दुनिया पर हुक्मरानी की। 109 हफ्तों तक आलमी नंबर 1 रहे और 11 ग्रैंड स्लैम्स टाइटल्स जीते। ब्योरनबर्ग की आमद पाकिस्तान टेनिस के लिए एक बड़ा एजाज है। उनका दौरा न सिर्फ नौजवान खिलाड़ियों के लिए हौसला अफजाई का बायस बनेगा, बल्कि आलमी सतह पर पाकिस्तान के मुस्बत तशख्खुस को भी मजीद उजागर करेगा। यूथ अंडर 18 नेशनल हॉकी चैंपियनशिप के दूसरे रोज 3 मैचेस खेले गए। पहले मैच में आजाद जम्मू कश्मीर ने इस्लामाबाद को 2 के मुकाबले में 6 गोल से हरा दिया। फातेह टीम की तरफ से सैफ ने 4 गोल स्कोर किए। अब्दुल्ला और हसन ने 1 गोल किया। इस्लामाबाद की जानिब से दोनों गोल अब्दुल बासित ने स्कोर किए। दूसरे मैच में सिंध 2 ने बलूचिस्तान को 1 के मुकाबले में 3 गोल से मात दी। तीसरे मैच में पाकिस्तान आर्मी ने सिंध 1 को एकतरफा मुकाबले के बाद 0 के मुकाबले में 8 गोल से जेर किया। इवेंट 19 अप्रैल तक जारी रहेगा। और एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। आप रहिएगा पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के साथ।